ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण का आगाज हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 28 मई तक चलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सफलता की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत फ्रांस के संबंधों के 75 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। इस बार का समारोह भारत के लिए बेहद खास है। इस बार कांस फेस्टिवल में भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के कई नामी चेहरे शामिल हैं। इसके साथ ही भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांस में शिरकत कर रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर AR रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पूजा हेगड़े और R माधवन सहित कई भारतीय सितारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में रेड कारपेट पर चले। इन सेलेब्स के अलावा शेखर कपूर, रिकी केज, प्रसून जोशी, तमन्ना भाटिया और लोक गायल मामे खान भी शामिल हुए। वहीं अनुराग ठाकुर आपको बता दें कि ओपनिंग नाइट के सेलिब्रेशन में मैजेस्टिक बीच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो रेड कारपेट पर मशहूर भारतीय सितारे नजर आए। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता की यहां पर कामना भी की है। आपको यह भी बता दें कि मुलाकात हुई और CEO चार्ल्स एच रिक्विन से भी मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों के बीच अहम बातचीत भी हुई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस की तस्वीर है। कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर शेखर कपूर जैसे भारतीय बड़े दिग्गज सेलेब्स भी वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए सुनाते हैं आपको। The reason I'm here is to support the minister and the idea that India is about to become, in the next few years, it will become the biggest and the largest media entertainment platform in the world. And we are celebrating the future, not just the past. So this is not just a celebration of cinema, it's a celebration of our youth, it's a celebration of the way India has digitized, it's the way broadband is available to everybody, and it's the way that Indian youth and Indian content makers, along with the number of technology people that we have, we're all set to go and conquer the world. That's what we're celebrating, the future. It's absolutely ecstatic here to be at Cannes. It's the 75th year of Cannes. And what could be a better celebration for India's 75th year of its independence to be the honor country at the Marché du Film. Also, we have a showcase of 6 brand new, independent, very young filmmakers who will be benefiting from the market screenings which will be happening here at Cannes. Also, I think there will be a lot of talk about the co-production market. Today we have treaties with 15 countries, all across the globe. And most of those film commissions will be here at Cannes speaking with us. It's a great honor, and I also have my Elon Musk, which is premiering at Cannes XR. It's a project of love and going on for 5 years, so we're all excited. India has always come to Cannes, and we've all learnt a lot in Cannes. And there are two parts to Cannes. One is the market, and other one is where the films are showcased. I think both have been very important for us, and this is a special year because India is a country of honor. And think the government and also all the filmmakers together, we can see, have taken it pretty seriously. And we are looking forward to having very fruitful discussion, whether it is at an industry level or at the partnership level between different bodies. So I think I consider India a storyteller's country. Not now, in ancient India also, Katha is a very, very important part of our culture. Whether it is at home, whether it's a storytelling by grandparents to children, or in the society where you have congregations and your storytelling is very important part of it. So I think the next era can belong to India. Especially in terms of global stories, global ideas coming out of India. So I think it will be a great sort of festival for us, and we all look forward. वहीं फ्रांस के कांस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिका के मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष और CEO चार्ल्स एच
रिफकिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच अहम बातचीत भी हुई है। तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर। और भारत के लिए भी बहुत गर्व का पल है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कामना भी की है। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण का आगाज हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद हैं। भारत के कई दिग्गज सेलिब्रिटीज भी वहां पर मौजूद हैं। और फ्रांस में हो रहे इस 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है। ये संयोग है कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के समय भारत की स्वतंत्रता के भी 75 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांस फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर मिलने पर भी खुशी जताई है। फिल्म फेस्टिवल में कई भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों के नाम आपको बता रहे हैं। रॉकेटरी दिखाई जाएगी और आपको ये भी बता दें कि वो जो फिल्म्स के नाम हैं वो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। द नाम भी, इनफेक्ट, प्रतिद्वंदी, गोदावरी, अल्फा बीटा गामा, ये भी दिखाई जाएगी। और तोतों से भरा एक पेड़, ये तमाम वो फिल्में हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ये भारतीय फिल्में वहां पर शोकेस की जाएंगी। कई मशहूर हस्तियां भी वहां पर पहुंची है। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच गए हैं। वहीं फ्रांस में हो रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नजर आई है। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार 8 जूरी मेंबर में शामिल होने से जहां दीपिका खुश हैं, वहीं उनके फैंस भी काफी उत्साहित हैं। सोमवार रात दीपिका जूरी मेंबर्स के साथ डिनर में शामिल हुई थी। 2017 में भी कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थी दीपिका पादुकोण, लेकिन तब वो जूरी मेंबर का हिस्सा नहीं थी। दीपिका ने कहा कि कांस का जूरी मेंबर बनने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ा है।